Welcome to the discussion on basic skills for comprehension. Basic skills for comprehension पर आधारित इस लेक्चर में आपका स्वागत है. As a scholar, when you read a passage for comprehension, the first challenge you face is how to read it and what should you know before beginning to read it. इस वीडियो में हम बेसिक स्किल्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे. In the previous video, we have seen the meaning of comprehension and what is the basic concept of comprehension. अभी इससे पहले एक वीडियो में हमने ये देखा था कि कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ क्या है और मूल रूप से कॉम्प्रिहेंशन को हम किस तरह से समझ पाते हैं, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं. नाउ वी विल सी द बेसिक स्किल्स. एज अ स्कॉलर, when you read a passage for comprehension, the first challenge you face is how to read it and what you should know before beginning to read it. और अब हम ये देखते हैं कि जब हमें एज अ स्कॉलर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ना होता है तो हमारे सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, एक चुनौती आती है. और वो चुनौती क्या होती है? हाउ टू रीड इट एंड व्हाट शुड यू नो बिफोर बिगिनिंग टू रीड इट. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट or each individual scholar has his or her own way of reading a passage. And nobody knows or nobody tells us what is the right way of reading. So if we are guided to this track, how to read it, what is the right method of reading a comprehension passage, or what are the main ingredients that we should inculcate in ourselves before reading a comprehension passage, then it will help us to work on the comprehension passage. जब हम एक स्कॉलर के रूप में, एक जिज्ञासु के रूप में, एक छात्र के रूप में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ते हैं तो हर व्यक्ति का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ने का अपना एक व्यक्तिगत तरीका होता है. और उस व्यक्तिगत तरीके या शैली में जब हम अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं. यदि हमें इसका सही ट्रैक समझा दिया जाए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी सही शैली हमें समझा दी जाए, तो हम उसी पैसेज को बेटर पढ़ेंगे और उसका आउटपुट भी बेटर निकल के आएगा. How to read it and what should you know before beginning to read it. Now, it is very important to know that there are certain things that which we should be clear about before reading a comprehension passage. किसी भी पैसेज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कुछ चीजें तो हमें पहले से पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि पैसेज को पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद हम कई इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं. आपको पहले से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, फिर पैसेज को पढ़ें. तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको उसके बाद पढ़ने पर ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. देयर आर सम बेसिक और फंडामेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड इन efficient reading for a comprehension passage. So these fundamental skills will help you to read the passage efficiently, to read the passage with a better productive result as compared to the raw reading. यदि आप इन बेसिक फंडामेंटल स्किल्स को, इन मूल गुणों को या इन मूल तत्वों को सीख कर फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ते हैं तो आप ज्यादा एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक उसको पढ़ पाएंगे. दे आर द कैपेबिलिटी ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. नाउ बिफोर रीडिंग अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, the basic skill or basic potential
that you should develop in yourself is the capability of knowing the meaning of words. Words have meanings and it is the meaning which is the comprehension. शब्दों के अर्थ होते हैं और ये अर्थ ही उसका comprehension है. If you know the meanings of words, then you will be able to interpret the sentences. यदि आपको शब्दों के अर्थ मालूम है तो आप वाक्यों को समझ सकते हैं. So the first basic skill or basic potential or capability that you have to develop in yourself before reading a comprehension passage is the capability of knowing the meaning of words. इसलिए ये पहला गुण है या पहला तत्व है जो आपके अंदर होना चाहिए, और नहीं है तो आप उसे पैदा कीजिए या आप उस पर थोड़ा प्रयास करके ये कुशलता अपने अंदर पैदा कीजिए. Capability to understand meaning of a word from discourse context. Now, the second basic skill is to understand the meaning of a verb from discourse context. Now, what happens is that the words, they are derived from certain sources. The words do not come automatically. They come from certain sources. And a word coming from a particular source gives us a particular meaning. शब्द एक स्रोत विशेष से आए होते हैं या लिए गए होते हैं. यदि आपको उस सोर्स का पता है तो आप उस शब्द को भी सही अर्थ दे पाते हैं. तो इसलिए डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट को समझना या कोई भी गिवन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको कहां से दिया गया है और आप उसके बारे में कुछ आइडिया पहले से रखते हैं या आप उसके स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, उस स्थिति में आपकी समझ या आपकी कॉम्प्रिहेंशन को ये सपोर्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एनवायरमेंटल इशू. हम यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि हम पर्यावरण संबंधी कोई बात कर रहे हैं एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट एंड व्हाट इज द बेसिक वर्क दैट इज बीइंग डन रिगार्डिंग एनवायरमेंट. यदि आपको पहले से पर्यावरण शब्द मालूम है, पर्यावरण के विषय में कुछ जानकारी है कि क्या हो रहा है पर्यावरण के संबंध में, या जो सामान्य जानकारी है वो आपके पास है, तो आप उसके बाद जब इस शब्द को पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ेंगे. और अगर एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन है, इफ यू हैव सम मोर नॉलेज, सम एक्सटेंडेड नॉलेज, देन योर अंडरस्टैंडिंग विल बी मच मच बेटर. और उससे ज्यादा अगर आपके अंदर आपके पास पहले से ही ज्ञान है उस चीज का, तो आप उसे और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. सो द डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन we need to know the capability, the basic skill that a scholar should have is the capability to follow organization or format of the passage. Then the organization or the format of the passage is also very important, because every piece of writing, every text that is written is properly organized and it has a particular format. It has a particular structure. And if you can understand the structure in which it has been written, or the way the words and sentences have been organized, then it is easy for you to understand. Let us take an example here that suppose we are talking about a story. यदि हम शब्दों की रचना या शब्दों का ढांचा या वाक्यों का ढांचा समझ पाते हैं तो हमारे लिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को समझना बहुत आसान हो जाता है. यहाँ पर हम एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक कहानी पढ़ी. Now we begin with, once upon a time there was a king. The king had 4 queens. Now this is the format.
once upon a time, that has been used in stories. We have heard or read certain stories. We can relate to it. We can connect to it. So it is very easy for us to understand from the very outset that this is a story. जब हम एक बार की बात है, एक राजा था, उसके 4 रानियां थी. यदि हम ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसा एक फॉर्मेट लेते हैं, इसको हम समझते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली, यदि हमने ऐसी कहानियां पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि यह कहानी का स्ट्रक्चर है. और उसके बाद जब हम आगे सुनते हैं तो हम उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं. तो जो फॉर्मेट होता है, किसी भी चीज का फॉर्मेट होता है, वो हमें हेल्प करता है कॉम्प्रिहेंशन में. यदि पहले से हमें फॉर्मेट की समझ होती है तो वो हमें बहुत आसानी से समझने में मदद करता है और हमारे लिए वो चीज बहुत कम समय में मस्तिष्क में आ जाती है. So it makes things very easy and very quick for us to understand if we know the format earlier. If we have known the format earlier, then the capability to identify backgrounds and references mentioned in it. Now this is very important because every text piece that has been written is based on some background or the other. Now there are 2 things. The first thing is the background of some written thing. यहाँ पर 2 बहुत मुख्य बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो बताई गई हैं, वो ये है कि हर चीज की एक पृष्ठभूमि होती है और अगर हम उसकी पृष्ठभूमि को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इज रिटन फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड and we can identify that this is something taken from history, then it is easy for us to go back in time. यहां उदाहरण के तौर पर यदि कोई ऐतिहासिक टेक्स्ट है, हमें समझ में आ रहा है कि इतिहास में से लिया गया है, तो हम खुद पीछे उसी समय में चले जाते हैं. तो हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी होती है वो उसी अनुपात में बढ़ जाती है क्योंकि उस बैकग्राउंड से हम पहले से परिचित हैं. कम से कम मोटे तौर पर इतने परिचित हैं कि दिस इज समथिंग हिस्टोरिकल विच आई हैव रेड समवेयर इन माय चाइल्डहुड एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट. यदि बचपन में भी पहले भी कभी कोई चीज पढ़ी है, बहुत क्लियर नहीं याद आ रही है, लेकिन कुछ कुछ उसकी बैकग्राउंड याद आ रही है, तो भी वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को सपोर्ट कर देती है. And references mentioned in it. Second thing is that every piece of comprehension has references. संदर्भ होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कहीं और से जुड़ करके अपने मीनिंग को कंप्लीट करते हैं. References are those points which refer to something else or something previously discussed, and when we are connected to those references, then it is very easy for us to comprehend the exercise or comprehend the passage. यदि पूर्व के किसी संदर्भ की हमें जानकारी है और हम उस संदर्भ के साथ अब कनेक्ट हो पाते हैं, तो हमारे लिए कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है. सो बेसिक स्किल, इफ यू हैव द बेसिक स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड, if you have some earlier knowledge of the background, you will understand the comprehension passage easily. If you have a earlier knowledge of reference, or now you can correlate yourself to that reference, then this basic skill will help you to comprehend the passage which you are reading now. यदि पृष्ठभूमि आपने पहले से कहीं पढ़ी हुई होती है या संदर्भ के साथ आप जुड़ पाते हैं या आपने कहीं रैंडमली भी बिल्कुल आपकी धुंधली यादों में भी वो चीज कहीं आती है, तो वो आपको अब कॉम्प्रिहेंशन में सपोर्ट कर देगी, हेल्प कर देगी. देन अनदर बेसिक स्किल इज द कैपेबिलिटी टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड एक्सटेंडेड मीनिंग फ्रॉम अ पैसेज अबाउट इट्स कंटेंट्स. अनदर बेसिक स्किल which is very important to comprehend a passage is the ability to draw inferences. Now, to draw inferences means that you have to analyze the situation
and then draw a meaning out of it. टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज का विश्लेषण करें और उसके बाद उसमें से जो अर्थ या भाव छुपा हुआ होता है आप उसको निकाल करके ला सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका अर्थ ये हो सकता है. तो जैसे एक पशु ने दूसरे पशु को देखा कि वो नीचे गिर रहा है और उसने उसको मुंह में पकड़ लिया और उसने बाहर निकाल लिया, तो आप उसका इन्फ्लुएंस ये ड्रॉ करेंगे कि इसने इसको बचाया है. आप उसका इन्फ्लुएंस ये नहीं ड्रॉ करेंगे कि जिसने इसको खा लिया, क्योंकि आपने देख लिया है क्योंकि ये बड़ा पशु है और छोटे पशु को ये पानी में से खींच करके बाहर निकाल रहा है, चाहे मुंह में ही पकड़ा है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस जो ड्रॉ कर रहे हैं वो आप सही ड्रॉ कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ इफ यू सी अ बिगर एनिमल protecting a smaller animal from drowning in the water, and the bigger animal is catching hold of the smaller animal by its mouth, then it will be easy for you to draw the inference that this is the process of saving life. The bigger animal is not eating the smaller animal by holding it in its mouth, rather it is saving it. So this is how our comprehensive ability works. And extended meaning from a passage, extended meaning of a passage. Now this ability to understand the extended meaning is also very important, because we have a brain which thinks a bit above the normal. हमारा जो मस्तिष्क होता है पढ़ने पढ़ाने के प्रक्रिया में, ये आम सामान्य सोच से थोड़ा सा अधिक सोच पाता है. तो जब हम सामान्य सोच से थोड़ा अधिक सोचने की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो एक्सटेंडेड मीनिंग्स की तरफ हम चले जाते हैं, हम विस्तृत अर्थों को तक भी पहुंच जाते हैं. तो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी हमें और आगे का समझने में हेल्प कर देती है. फ्रॉम अ पैसेज अबाउट इट्स कंटेंट्स. सो द कंटेंट्स दे मीन समथिंग मोर देन व्हाट इज विजिबल ऑन द सरफेस. Then the capability to identify the main thought of a passage. Now when we read a passage, we should have the capability, the potential, the talent to understand the main thought that is being discussed. Because in the process of discussion, we land upon multiple thoughts, multiple ideas. And if our comprehensive ability or our basic comprehensive skills are polished, developed, then we can understand clearly what is the main point, what is the cardinal point, what is the principal point that we are talking about. कोई भी विचार होता है, उसमें एक विचार होता है और उस एक विचार के कई शाखाएं निकल आती हैं. जब हम वार्तालाप करते हैं या विचार विमर्श करते हैं या चिंतन मनन करते हैं तो हर विचार की शाखाएं निकलने लगती हैं. जब हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज को डेवलप कर लेते हैं तो हम मेन थॉट से डिगते नहीं हैं. वी स्टिक टू द मेन थॉट एंड द रेस्ट ऑफ द थॉट्स वी कैन कैरी देम अलोंग वेरी कंफर्टेबली. हम बाकी के सारे आयामों को भी बहुत आसानी से साथ ले लेते हैं, लेकिन हम मुख्य विचारधारा से बिल्कुल भी डिगते नहीं हैं. द कैपेबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस आंसर्ड इन अ पैसेज. नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन अ पैसेज. दोज क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड. अ पर्सन हु हैज द बेसिक स्किल to understand a passage can easily answer the questions that have to be answered. जिसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझ में आ जाता है, हर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बाद में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमें अवश्य दिए होते हैं और उनके हमें उत्तर देने होते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी की बेसिक स्किल अगर हमारी अच्छी है और हमें पहले से पता है कि हमें क्वेश्चन के आंसर भी इसमें से ढूंढने हैं, तो हम बहुत आसानी से इन द कोर्स ऑफ रीडिंग द पैसेज वी आर क्वाइट कंफर्टेबल विद द आइडिया
that we are also finding answers for certain questions. हम comprehensive ability के कारण उस पैसेज को पढ़ते पढ़ते आसानी से कुछ शब्दों को या कुछ वाक्यांशों को पकड़ते जाते हैं कि ये हमें किसी न किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए काम आएंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज जो होता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के पीछे हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं और वो हमें आंसर करने होते हैं. The capability to recognize the literary devices or prepositional structures used in a passage. Now, another capability that a student or scholar should have. एक छात्र या एक ज्ञान पिपासु के अंदर और एक गुण होना चाहिए या प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो होती है to recognize the literary devices. Because students of literature come through literary devices from the very beginning. Those students who read literature come in touch with those devices at a very early stage. जो छात्र पहले से ही साहित्य पढ़ रहे होते हैं, वो लिटरेरी डिवाइसेस या साहित्य में काम आने वाले जो अलंकार होते हैं या इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हमारे साहित्य को संबल मिलता है या साहित्य की संरचना अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, वो उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि वो पहले से उससे परिचित होते हैं. So, the capability to recognize the literary devices. Now, these literary devices have to be recognized. इनकी पहचान करना, ये बेसिक स्किल पहले से होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये हमने वहां पढ़ा था, ये तो वो वाला अलंकार है, ये तो वो वाली रचना है, या ये यहाँ पर ये वाला रूप प्रयुक्त किया गया है जो हमने वहां पर देखा था. तो इस तरह से हम जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जब हम पहचान लेते हैं, तो हमारे लिए ये लिटरेरी डिवाइसेस ये बहुत रिच आंसर्स प्रोवाइड करती हैं. और prepositional structures used in a passage or prepositional structures used in a passage. There are certain structures which in itself are very rich in meaning. If you can understand those structures, you can recognize those structures, then it helps you in your comprehensive exercise. आप यदि किसी चीज की संरचना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो आप उससे भी अपने कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज को बहुत आसानी से समझ पाते हैं. द कैपेबिलिटी टू डिटरमिन इट्स टोन, मैनर एंड डायरेक्शन. नाउ एवरी पीस ऑफ राइटिंग हैज अ टोन, अ मैनर एंड अ डायरेक्शन. वी शुड हैव द बेसिक स्किल of understanding the tone in which it has been written. While constructing the passage, while composing the passage, what was the mood of the writer? How has he written it? What was going through his head when he was writing it? Because that gets reflected in the writing. जब कोई भी टेक्स्ट पीस हमारे सामने आता है, गद्य या पद्य, तो राइटर ने उसे किस रुझान से लिखा है, किस तरंग में लिखा है या किस मूड में लिखा है, ये हमें उसको पढ़ने के साथ समझ में आ जाता है. तो उस टोन को डिटरमिन करना हमारे लिए, अगर बेसिक स्किल है हमारे अंदर, तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान हो जाता है. देन द मैनर एंड डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. द मैनर एंड डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. व्हाट इज दिस टेक्स्ट टेकिंग अस टू? ये वाला जो टेक्स्ट पीस कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज हमारे सामने है, द पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज विच इज बिफोर अस, व्हाट इज द मैनर ऑफ इट, व्हाट इज द डायरेक्शन इट इज लीडिंग अस टू. ये कौन सी दिशा में की तरफ हमें ले जा रहा है, यदि ये हमें समझ में आता है तो हमारे लिए उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ना और भी आसान हो जाता है और वो हमें चुटकियों में समझ में आ जाता है. द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशनल मूड. दिस सिचुएशन और सब्जेक्ट मैटर इज अफेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव आइडियाज एंड मीनिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस एंड स्पेशल रेफरेंस पॉइंट्स, अनप्लैन्ड एंड इंटेंशनल इन्फ्लेक्शंस, एटसेट्रा.
Now, another point is, another basic skill that we should have for comprehension exercises is the capability to understand the situational mood. Now, situational mood is something different from a fixed mood. What happens is that when the writer is writing or composing or constructing a piece of text, at that particular time, the situation influences him. And in that condition, the outcome of the literary product is largely affected by it. कोई भी राइटर जब कोई भी टेक्स्ट कंपोज करता है, लिखता है, तो उस समय पर जो उसके ऊपर सिचुएशन का, परिस्थिति का प्रभाव होता है, वो उसकी राइटिंग में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगता है, प्रदर्शित होने लगता है, और वो हमें पढ़ने के बाद समझ में आने लगता है that the writer is melancholic here, the writer is very happy here, this is a war poem, this is a nature poem. We get the understanding automatically. हमें अपने आप समझ में आने लगता है कि सिचुएशन क्या थी, यहां पर लेखक खुश था या दुखी था, या ये कोई युद्ध की पर आधारित रचना है, या ये पर्यावरण पर आधारित रचना है, या ये खुशनुमा रचना है, या ये अवसादपूर्ण रचना है. हम उसकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, और काफी हद तक हम ये भी बता देते थे कि जब ये लिखा गया था तब हमारा राइटर या इस टेक्स्ट को जिसने भी स्क्रिप्ट किया है वो किस तरह की मनः स्थिति में था, वो हमें वहां से पता चल जाता है. This situation or subject matter is affected by representative ideas and meanings. Now, the basic things that affect the situational mood are the representative ideas and meanings. There are certain ideas and meanings that occur to a person in a particular piece of time. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय विशेष पर आ जाती हैं. तो जो समय विशेष पर आई हुई चीजें होती हैं, विचार होते हैं, भाव होते हैं, मनोवृत्तियां होती हैं, वो राइटिंग में आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. ऑब्जेक्ट्स, certain objects, they start reflecting in the writings. Suppose the writer is sitting under a tree, in the shade of a tree, then he will somehow that particular aspect will reflect in his writings. That there was a tree, I was sitting under a tree, so and the bird was chirping. तो कई बार कोई वस्तुएं ऐसी हैं जो राइटिंग को प्रभावित करती हैं, तो उन वस्तुओं का भाव भी राइटिंग में आ जाता है. जैसे पेड़ के नीचे बैठकर लिख रहा है तो कहीं ना कहीं उस पेड़ का संदर्भ आ जाएगा, या चिड़िया चहचहा रही है तो उन चिड़ियों की चहचहाहट का संदर्भ आ जाएगा. सो वी हैव टू कॉम्प्रिहेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, वेदर सम ऑब्जेक्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड दैट राइटिंग. देन हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. Historical references have been many in the old writings. Especially, we find that history was full of matter that writers have taken. ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित इतने लेखकों ने लिखे हैं कि हिस्टोरिकल कोई भी चीज होती है वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है. फलाना फलाना युद्ध हुआ था, या फलाना फलाना अकाल पड़ा था, या ये वाली घटना हुई थी, हम उसे आसानी से देख पाते हैं. Any war, any big event that happened in history gets noticed very easily and gets mentioned by the writer very easily. वो हमारी नोटिस में भी आसानी से आता है और लेखक के लेखन में भी बहुत आसानी से आ जाता है. So comprehension passage may have such thing which we need to have the skill to identify or recognize. हमारे comprehension passage में कोई अगर ऐतिहासिक घटनाक्रम या ऐतिहासिक घटना का संदर्भ आया है जो राइटर की राइटिंग में आ चुका है, तो हमारी नोटिस में या हमारे पहचानने की जो क्षमता है उसमें भी वो चीज पकड़ में आ जानी चाहिए कि हमने ये देखा, ये फलाने राजा का समय था, ये
फलानी घटना के साथ जुड़ी हुई बात है, तो उस तरह से हम अपने कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे देते हैं. And intentional inflections, etc. And there are certain intentional inflections. There are certain things that the writer is telling deliberately. He is wanting to convey a message. That is his intentional inflection. कई बार हमारा राइटर कुछ लिखने के बाद या कुछ बोलने के बाद बहुत विशेष रूप से हमें किसी भी बात की ओर ले जाता है और वो उस बात को कहने का मंतव्य रखता है. तो जब वो मंतव्य के साथ हमें कुछ बता रहा है या उद्देश्यपूर्ण तरीके से हमें बता रहा है, वो उसका इंटेंशनल इन्फ्लेक्शन होता है. और उस इंटेंशनल इन्फ्लेक्शन के कारण हम उस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. कब? जबकि हम उस समझ को रखते हैं. तो हमारी जो बेसिक स्किल है, द बेसिक स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुड हैव दिस एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज इंटेंडेड at this particular point through this sentence, through this reference. हमारी अपनी एक बेसिक स्किल होनी चाहिए, हमारी अपनी एज अ रीडर एक क्षमता होनी चाहिए. एक छात्र के रूप में, एक शिक्षार्थी के रूप में भी हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम इन चीजों की पहचान कर पाए. So these are the basic skills that we should have to understand the comprehension passage. Because if we understand these basic points in a passage, then we can easily answer the questions that are to be attempted at the end of every comprehension exercise. यदि ये मूल गुण हमारे अंदर हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को समझने के लिए, तो हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बाद वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाते हैं. सो दे आर रिकमेंडेड. इनकी आपको सलाह दी जाती है कि यदि ये गुण आपके अंदर नहीं है तो आप इन्हें अपने अंदर समाहित कीजिए. थैंक यू. धन्यवाद.